हुआ है ना, उसके जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया है उसके आगे का क्वेश्चन चालू करो. ओके, दैट मीन्स आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड अप टू, ये जो चैप्टर है वो 15 है ना, तो 15.2 तक हम लोगों ने किया है. 15.3 से करना है, तो आप लोग स्टार्ट करो. 15.3 में 3-4 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करो. तब तक बाकी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे. एंड आई विल ब्रिंग माय लैपटॉप ऑल्सो. ओके, सो स्टार्ट. और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब कभी मेरा लैपटॉप लेके आते हैं. So have you finished the questions? Yes, students. Yes, ma'am. How many have joined now? 14. That means 12 are there. Okay. चालू करेंगे. चालू करेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute है, मेरा यहाँ का वॉइस कम हो गया है. 1 मिनट. हाँ, चलो. 15.3 फर्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सेल. अभी इसमें शायद आपको सेनेसेंस वर्ड नया होगा.
What is senescence? Do you know? Senescence का meaning क्या है? Senescence means becoming old. You know, the leaves, when they become leaves, are having limited growth. And after a particular period, the leaves fall down, flowers fall down, fruits fall down. You know that. And when this aging of this plant organ takes place, it is called as senescence. So अभी इसमें क्या होगा आपको लगता है? क्वेश्चन 1 में 15.3 में कौन सा डेवलपमेंट का करेक्ट ये होगा आंसर? C option, ma'am. C option. C Yes. option. Correct. Because C में क्या है? Cell division. Cell division will take place, growth will take place. Afterwards, you know, differentiation will take place. Differentiation means the meristematic tissue will get divided into different types of tissues like parenchyma, collenchyma, etc. Maturation will take place, we can say. At the end, senescence means the leaves or maybe the cells will die. Question number 2, the ability of plant to follow different pathways in response to phases of life to form different kind of structure is called as? Plasticity. Yes, it is called as plasticity. You know that. Plasticity के जो the example है ना, buttercup and ranunculus, you have to remember that. Then heterophily in ranunculus equidulus is an example of? Plasticity. Yes, correct. Plasticity means depending upon the environmental conditions, the structure of the organ changes, and that is called as plasticity. You know, for example, in the ranunculus, that is buttercup. And another example, I think, which is given there in the book, 2 examples are given. And in these, heterophily is observed. Heterophily ka matlab hai 2 different types of leaves are formed. For example, suppose some plants are such that half part of the plant is underwater and half part is above water. तो जो underwater leaves होंगे ना वो अलग होंगे. अलग means they will be elongated, they will be narrow, क्योंकि उनको resist करना है water current को. और जो water के ऊपर जो leaves होंगे ना, they will be broad, they will be flat, because they don't have to resist the water current. तो 2 type के leaves होंगे, and that is called as means that is plasticity, difference in structure. Now, plant growth regulators, photohormones. You know, in case of plants, in case of animals, hormones are produced. In the same way, in the plants, there are some organic compounds which are produced there. And these organic compounds which are there, these organic compounds are produced in one part, and they will be, and these organic compounds will be produced in one organ, and they will be transported to another organ. And they are the internal factors to regulate the growth of the plant. And these are called as plant growth regulators or plant growth hormones or phytohormones also. And then in this, there are 2 types. Some are accelerators. They accelerate the growth. They are promoters, we can say, promoters. And some are inhibitors. For example, ABA, abscisic acid. Ethylene is also, some people call ethylene also inhibitor. Well, some scientists say that auxins, gibberellins, cytokinins, and ethylenes are promoters. They promote the growth of the plant. And abscisic acid, which we called it as ABA, it inhibits the growth, it slows down the growth. So that is the introduction for phytohormone. So now start solving the question. Question start karo. 4-5 questions solve karo, then we will start.
Something went wrong. My laptop is not working. Otherwise, I will have to use my mobile only. We'll find out. Otherwise, I will close this entire my laptop and again we will start. पांच छह क्वेश्चन कर लो. हाँ, पांच क्वेश्चन कर लो. Again, I will restart my laptop. कुछ तो गड़बड़ हो गई. चलो, कितने हो गए क्वेश्चंस बोलो. पहला हो गया. Yes. Complete the following analogy by selecting the correct option. Indole, IAA is indole compound. So derivative of carotenoid is question number 1, that is 15.4 में से पहला डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड. नो, इसमें देखो ये इसका मतलब क्या है. Yes, which is the precursor? You have to remember. Do you know what is precursor? Precursor means the substance or the compound which is present in the plant from which plant hormone is formed. तो यहाँ पे जो है ना, indole compound है IAA. You know indole acetic acid. It is most commonly occurring natural oxide. You know that indole acetic acid. It is most commonly occurring natural oxide. It is indole compound. तो ये derivative of carotenoid कौन है? ABA, abscisic acid. Abscisic acid is produced from carotenoids. Carotenoids, you know, these are accessory pigments. And from that, ABA is produced. So ABA will be answer for this 15.4. तो आपको हर एक के means हर एक का प्रिकर्सर याद रखना चाहिए. क्वेश्चन आएंगे तब मैं बोलती जाऊंगी, नहीं तो आप बाद में लिख के लेना. आपको पता नहीं है ना, प्रिकर्सर एक्चुअली बुक में दिया है तो भी ठीक है. अभी देखो सेकंड क्वेश्चन. Which one of the following PGR? PGR means plant growth regulator. PGR, plant growth regulator, is a derivative of terpene. तो अभी जहां पे देखो अपना बुक है ना, नहीं तो ये नोट्स में भी हर एक में it is a derivative of what? केमिकल कंपाउंड का नाम दिया है. तो वो हर एक का आपको याद रखना चाहिए. कहाँ पे है मैं बोलूं आपको? ये अपने बुक में या आपने पढ़ा है? GA3 है. हाँ, GA3. yes, इसका आंसर GA3 है. करेक्ट, बिकॉज जिबरेलिक एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स. लेकिन ये दिया है अपने नोट्स में, ऐसे मैं बोलती हूँ. ये आपने पढ़ा है क्या? नहीं तो मैं कौन से पेज पे है ये बोल दूं आपको.
या आप बाद में देखोगे? हाँ, देखो मैं बोलती हूँ क्योंकि जिस सबको तो समझेगा नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ कहाँ पे है ये। देखो आप अपने नोट्स ना, नोट्स खोलते जाओ पीछे पीछे पीछे, क्योंकि अब लैपटॉप नहीं तो मोबाइल पे देख रही होगी, तो आपको पीछे 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 से देखते जाओ। देखो अभी देखो मुझे मिल गया ये ऑक्सीजन यूजेस, तो यहाँ पे मिलेगा अपने को। ये सब चीज ना आपको याद रखना है। हाँ नहीं, देखो इसमें अपने नोट्स में तो ये नहीं दिया है, मुझे तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपने बुक में है कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन, ये सब दिया है अपने बुक में। तो अपने बुक में से करो, नहीं तो सीबीएसई के बुक में होगा तो वहां से याद रखो, ठीक है? तो अभी देखो बायोकेमिकली काइनेटिन इज, काइनेटिन इज, काइनेटिन मीन्स यू नो साइटोकिनिन, उसमें काइनेटिन रहता है, तो इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? सी ऑप्शन है मैम। सी ऑप्शन है, करेक्ट। और देखो ये सीबीएसई ने नहीं दिया है तो आपको नहीं याद रखना है, याद रखो वो, क्योंकि मेरे पास तो नया सीबीएसई का बुक नहीं, मेरे पास तो ओल्ड है, मे बी 10 years बैक, क्योंकि तब मैंने लिया था। तो अभी नए सिलेबस में ये नहीं होगा तो आपको नहीं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following is not correct for oxygen? क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? इनिशिएट सेल डिवीजन। No, which is not correct. Enhances senescence. हाँ, oxygen is a promoter. That means it will promote the growth. Enhances senescence means it will help in aging of the plant. Aging means death होगा ना बाद में. That means the leaf will fall down, flower will fall down. That is senescence will take place. And enhance means to increase the speed. तो oxygen इसके लिए नहीं help करता है. Enhances senescence इसका मतलब it is inhibitor. लेकिन oxygen is a promoter, so C is our answer. Enhances senescence. Enhances का मतलब accelerate, increase the rate of senescence means aging. तो ये तो नहीं oxygen कर रहा है, तो C is our answer. Question number 5, fruit and leaf drop at early stages can be prevented by application of Auxins. oxygen. Oxygen is a promoter, so oxygen. Then question number 6, oxygen can be bioacid by. Now, do you know what is bioassay? I will tell you. Bioassay. Bioassay means to test something with the help of living organism. That is called as bioassay. Bioassay means to use some living organism to test something. तो उसको बोलते हैं bioassay. Means समझो अभी दवा तैयार किया. Means somebody has discovered some medicine. So you have to test it whether it is correct or not. So or whether it will have side effects on the animal. Then you will use something, maybe some mammal. Guinea pig use करोगे, नहीं तो और rat use करोगे, उसको बोलते हैं bioassay. तो ऑक्सीजन के लिए bioassay क्या है? ये अपने बुक में दिया है. हाँ, ऑक्सीजन के लिए ये है, जिबरेलिन के लिए ये है, नहीं तो सीबीएसई में तो जरूर दिया है. तो ऑक्सीजन के लिए बायोएसे क्या है? आपको पता है, क्योंकि ये अपने एक्सपेरिमेंट किया है. नीचे वाला 7th क्वेश्चन देखो. 7th क्वेश्चन क्या है? एवेना कर्वेचर है ना, एवेना कोलियोप्टेल टिप that FW Venn took, and FW Venn did one experiment on that particular Avena coleoptile tip. तो यहाँ पे ऑक्सीजन
can be bioacid by Avena coleoptile curvature. You know that experiment. देखो नीचे 7th question दिया है. The following diagram represents an experiment performed by F.W. Wayne. What conclusion did he draw from this experiment? What he did, you know, he took Avena coleoptile tip, he cut it, the upper tip. तो अभी वो decapitated हो गया. बाद में वो टिप उसने कहाँ पे डाल दिए? अगर ब्लॉक पे डाल दिए. And then he cut the agar blocks into small pieces, and that small piece he put again on the cut coleoptile tip. लेकिन वो आधा ही साइड में रखा, तो उसको क्या दिखाई दिया? जहां पे वो ऊपर रखा था ब्लॉक, वो साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी. So bending took place. From this he came to conclusion that something from that tip, which was taken from, which was something from that agar block, must have gone down, and which is responsible for growth of that particular side. And then what is that something? That something he called it as auxin. तो यहाँ पे क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? C क्या option, tip of the coleoptile as a source of The oxygen. coleoptile is the source of oxygen. Correct. Now, next one, the Avena curvature is used for bioassay of. इसमें से अभी आपको पता होना चाहिए एवेना कर्वेचर ऑक्सिन के लिए है, तो ये 4 में से ऑक्सिन कौन सा है? IAA. IAA, इंडोल एसिटिक एसिड. देखो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA, these are we can say the naturally occurring oxygen. While NAA, naphthalene acetic acid, 2,4-D, 2,4-D का मतलब है 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-T, that means 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. All these are artificially prepared oxins. They are not naturally occurring oxins. They are synthetic oxins, but they are used. So you have to remember this. The question में पूछते हैं which is most commonly occurring natural oxin, तो आपका आंसर होगा IAA. और इसका सबका यूज आपको पता होना चाहिए. 2,4-D and 2,4,5-T, they are used as weedicide. वीड का मतलब है हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, समझो राइस का फील्ड है, व्हीट का फील्ड है, तो उसमें बीच में कभी कभी डाइकॉट प्लांट्स का ग्रोथ होता है. These dicot plants are weeds. मराठीत त्याला आपण तण असं म्हणतो. तण, तण म्हणजे weed, unwanted plants growing in the field. So उनको निकालना है, तो you can spray these 2,4-D and 2,4,5-T so that the weeds will die. So they are used as weedicide. And this NA, naphthalene acetic acid, is used to prevent sprouting of the potatoes. आपने देखो पोटैटो लाया है, आलू, बटाटा, and if you keep at home, after some days you can see sprouting takes place. तो वो प्रिवेंट करना है. मीन्स हम लोग घर में नहीं यूज करते, लेकिन गवर्नमेंट में these potatoes are stored in the storeroom. They are tons, in tons they are storing. You can imagine, एक के ऊपर एक, so many kilos they are storing the potato. So sprouting will take place. To prevent the sprouting, naphthalene acetic acid is sprayed, NAA. तो ये आपको नाम के साथ याद रखना है. Okay. Now देखो, which of the following axes are isolated from plants? अभी आपको पता ही चला है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है. अभी which is natural occurring? That is your answer. NAA. Huh? NAA. No, NAA is synthetic. 2,4-D and NA are synthetic oxins. IBA, indole butyric acid, is natural. Indole acetic acid and indole butyric acid, these are natural oxins. उसमें से IAA is most common. तो यहाँ पे आंसर है IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड. मुझे लगता है सिर्फ एक ही स्टूडेंट मुझे आंसर दे रहा है, बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं. ऐसे क्यों?
आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या कुछ भी? Yes, so many students are there. I can see the names Aditi, Akshay, हाँ, अवंतिका, आर्यन, केदार, मनाली, मैंने सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन इतने सारे बच्चे हैं, कोई नहीं आंसर दे रहा है. Only one student is giving me answer. Why? आप लोग पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई करना तो चाहिए ना. दिसंबर आधा हो गया अभी अपना, तो करना ही चाहिए ना. और ये है 12th के लिए, ऐसे नहीं कि नीट के लिए 11th का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. ये 12th में है और अभी आपकी प्रीलिम है, और प्रीलिम में पूरा पोर्शन लेते हैं, पूरा सिलेबस होता है, तो पढ़ाई तो करना चाहिए ना. और ये सब बाहर होना चाहिए. इतने बार बुक पढ़ो कि सब कुछ बाहर ही हो जाएगा. ऐसे बाहर नहीं करना है, लेकिन इतने बार बुक पढ़ना है और फुल विथ फुल कंसंट्रेशन कि आपको सब याद रहेगा. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following is used as VD said? ये तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला है. 2,4-D. Yes, very good. 2,4-D, correct. now क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ो क्योंकि बहुत लंबा है. मुझे लगता है 5 क्वेश्चन आप कर लो, तब तक मैं बैठी रहती हूँ. उसके लिए मैंने अभी सब क्वेश्चंस देखे. मुझे लगता है मुझे अपाइकल डोमिनेंस एक्सप्लेन करना चाहिए. अपाइकल डोमिनेंस एक्सप्लेन किया तो ये पूरे क्वेश्चन आपको फटाफट आ जाएंगे. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस. ऑक्सिन जो है ना, you can imagine one plant is there, main stem and lateral branches are there. तो main stem जो है ना, तो main stem के ऊपर apical bud is having maximum amount of oxygen, and when it is present there, it will stop or it will inhibit the growth of the lateral buds. तो lateral branch grow नहीं होंगे ज्यादा, कम growth होगी lateral branches में. उसको बोलते हैं apical dominance. Effect of apical bud on the growth of lateral branch. When apical bud is present there, oxygen is concentrated there, so lateral buds, lateral branches do not grow properly. तो गार्डनर क्या करता है, ऊपर का जो अपाइकल बड है ना वो कट कर देता है. वो कट कर दिया तो अपाइकल डोमिनेंस इज नो मोर देयर. देन द लैटरल बड स्टार्ट ग्रोथ. यू कैन इमेजिन लैटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड. तो क्या होगा कि पूरा जो ग्रोथ है ना प्लांट का, इट विल बी डेंस ग्रोथ, ऑल लैटरल ब्रांचेस विल ग्रो. अब देखते हो कभी कभी गार्डन में गए ना तो प्लांट को ना कुछ शेप दिया रहता है, अम्ब्रेला शेप, elephant like, giraffe like, how that is given. So lateral branches are allowed to grow. Apical dominance will be no more there. So we have to cut the apical bud, the tip of the main branch, so that the lateral branches will grow properly. So that is apical dominance. And इसको जो कट करते हैं ना apical bud, उसको बोलते हैं pruning. P-R-U-N-I-N-G. Pruning of the plant is done. Pruning means apical bud is removed. Okay, so यही questions अभी है. तो आप अभी 11th वाला किया होगा तो मुझे आंसर बोलो, और 12th के बाद 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर है. क्वेश्चन नंबर 11, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सिन. B option. Second one, oxin was first isolated from fungal pathogen. That is wrong. Oxin was first isolated from human urine, not from fungal pathogen. Fungal pathogen का आंसर है जिबरेलिन. You know जिबरेलिन क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलती हूँ. तो ये second one, B is our answer. Now question number 12, in a garden, the gardener cut the apical bud of Lawsonia. Lawsonia means mehendi, because
क्या होगा इसका आंसर? ढूंढ लो, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको. B option. Second, na? Second, correct, second. Yes. Due to the cutting of apical bud, the effect of auxin decreases and lateral bud grows and forms a dense appearance. That is why it can give a definite shape. अभी मैंने बोल दिया कि गार्डनर कैसे शेप देता है, अम्ब्रेला शेप, एलिफेंट लाइक, ऐसे कुछ अलग अलग शेप देते हैं क्योंकि अपाइकल बड रिमूव किया, प्रूनिंग किया. तो now next one, decapitation is done in tea plantation. Decapitation means apical bud is removed. क्या होगा इसका आंसर? ढूंढ लो. Enhance Enhance growth growth of of lateral buds. Correct. Enhance growth of lateral buds. Lateral branches will grow. Then 14 वाला भी easy है. Removal of shoot tips is a very useful technique to boost the production of tea leaves. This is because D option. कौन सा लास्ट वाला? Yes, D. Effect of auxin is removed and growth of lateral bud is enhanced. Correct. देखो टी प्लांट में हम लोगों को लीव्स ज्यादा चाहिए क्योंकि टी में हम लोग क्या यूज करते हैं? लीव्स. तो लीव्स ज्यादा चाहिए, तो लैटरल ब्रांचेस ग्रोथ होगी तो ही लीव्स ज्यादा मिलेंगे ना, इसलिए अपाइकल बड रिमूव करते हैं. सो इफ यू हैव सीन एनी टी प्लांटेशन, आप देखते होंगे छोटा छोटा प्लांट्स है लेकिन राउंड शेप है. राउंड शेप कैसे होता है? अपाइकल बड रिमूव किया, डिकैपिटेशन किया, तो ही lateral branches will grow. Now question number 15. What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows? आराम से सब पढ़ो और बाद में मुझे इसका आंसर देना. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? यस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑक्सिन accumulates on the shaded side, stimulating greater cell elongation there. जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ लाइट कम मिल रहा है, वो साइड में ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा और ग्रोथ ज्यादा होगी वहां पे, इसलिए बेंडिंग विल टेक प्लेस. ओके. अभी 16 देखो, आपको ये एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दीज ग्रोथ हार्मोन्स यू हैव टू रिमेम्बर. Now identify 16 question. Identify the hormone that induces parthenocarpine tomatoes. Parthenocarpine क्या है पता है आपको? What is parthenocarpine? Yes, Akshay. Parthenocarpine. The fruit is formed without fertilization. Correct. When a fruit is produced without the process of fertilization, it is called as parthenocarpine. And such fruits are seedless. तो कौन सा हार्मोन यूज किया तो पार्थिनोकार्पी मिलती है? Auxin. करेक्ट. 16 वाला हो गया. अभी 17. Tropic movements in plant is caused by, tropic movement means toward a particular stimulus. When a movement is seen towards a particular stimulus, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. हाँ, और वन मोर थिंग, मैं भूल गया आपको बोलना कि ऑक्सीजन जो है ना, दे विल शो पोलर मूवमेंट. पोलर का मतलब है दे विल मूव फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एपेक्स टू मॉर्फोलॉजिकल बेस. पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऑक्सीजन मूव फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एपेक्स टू मॉर्फोलॉजिकल बेस.
यानी देखो आपको बोर्ड दिखाई देता है, मैं बोलती हूँ क्या है, उसको बोलते हैं पोलर मूवमेंट। बोर्ड पे डायग्राम करती हो तो पता चलेगा, 1 मिनट। हाँ, पोलर मूवमेंट का मतलब है, ये साइड में आपको दिखाई देगा, समझो ये सॉइल सरफेस है, ये प्लांट है, और ये नीचे रूट से इमेजिन करो। तो ऑक्सिन्स विल मूव फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल एपेक्स टू मॉर्फोलॉजिकल बेस। तो स्टेम में वो ऊपर से नीचे आएगा ऑक्सिन, स्टेम में मॉर्फोलॉजिकल एपेक्स टू मॉर्फोलॉजिकल बेस, दिस इज एपेक्स, दिस इज बेस। सो ऑक्सिन्स विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और रूट में ये एपेक्स है, ये बेस है, so in roots it will move in this direction, and this is called as polar movement. polar movement का मतलब क्या है? polar movement का मतलब है the objects move from morphological apex to morphological base. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं हम, याद रखो। मीन्स ये क्वेश्चन कैसे होगा? Out of the following, which growth promoter or which PGR shows polar movement? और 4 नाम देंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन। तो आपका आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन शोज पोलर मूवमेंट, बाकी नहीं पोलर मूवमेंट बताते। एंड अपने बुक में ये जो मूवमेंट है ना, हाउ दीज ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ट्रांसपोर्टेड, उसका सबका लिखा हुआ है। इट विल मूव थ्रू जाइलेम, दिस विल मूव थ्रू फ्लोएम, ऐसे दिया है, तो वो आपको थोड़ा याद रखना है। तो वो भी याद रखो, ये क्वेश्चन है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने बोल दिया आंसर। तो समझ में आ गया पोलर मूवमेंट? Yes. Now match the following columns and choose correct alternative. नेचुरल ऑक्सीजन कौन से हैं? मैंने आपको बोल दिया है, कौन से हैं? Indole 3-acylic acid, indole butyric acid. वेरी गुड। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शन में से? A A option. option. A option. A option, correct. Now next one, premature fruit fall and leaf fall is prevented by? Premature means before fruit के बारे में बोल रहे, तो राइप होने के पहले ही, पके नहीं हुए फ्रूट तो भी गिर गए। लीफ बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है तो भी गिर गया, क्यों होता है? उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर फॉल। तो उसको इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय व्हाट? Auxin. ऑक्सिन, करेक्ट। अभी 20 वाला आपको याद नहीं होगा, तो अभी मैं बोलती हूँ, बकाने डिसीज है ना, बकाने डिसीज, कुरोसावा वाज वन साइंटिस्ट, उसके पास आजू बाजू के जो फील्ड में फार्मर्स काम कर रहे थे वो गए, क्यों? तो उन्होंने देखा फार्मर्स ने कि वो जो राइस फील्ड है उसमें कोई प्लांट्स ना एबनॉर्मली ग्रो कर रहे, बहुत ऊंचे हो गए, लंबे हो गए। तो उन्होंने उसको नाम दिया फूलिश सीडलिंग, क्योंकि वो बहुत बढ़ गए, लंबे हो गए इसलिए। तो क्यों ऐसे हो रहा है? तो ये देखने के लिए, ये ढूंढने के लिए, ये जो फार्मर्स थे ना वो कुरोसावा के पास चले गए और उन्होंने पूछा उसको कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो कुरोसावा ने सब ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि ये जो राइस प्लांट्स है उनके रूट्स पे एक फंगस ग्रो हो रहा है। तो उसने वो फंगस निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा, तो वो फंगस था जिब्बरेला फ्यूजिकोरा है। तो उसने सोचा कि ये फंगस है ना वो कुछ तो सीक्रेट कर रहा है, इसलिए ये जो प्लांट्स है वो लंबे हो गए, उनकी हाइट ज्यादा बढ़ गई। तो उसने वो जो समथिंग जो है, मैं बोल रही थी कि कुछ तो वो फंगस से मिल रहा है, तो वो फॉर दैट समथिंग ही गेव द नेम जिबरेलिन। एंड दिस डिसीज, when the fungus Gibberella fugicora infects the rice plant, the disease is called as Bacane disease. So what will be the answer for this? Which one of the following is the causative agent of fungus Bacane disease of rice seedling?
fungus, फंगस, करेक्ट. नाउ डैश इज यूज्ड. नहीं, आपको मैं टाइम देती हूँ अभी. आप 5 करो. 21 से 25. 5 मिनट वेट करती हूँ मैं. एक जिबरेलिन पढ़ लिया तो पता चलेगा फटाफट. हो गया तो बोल देना. अभी आपको माल्टिंग पता है और ब्रूइंग इंडस्ट्री पता है. 21 का वही फर्स्ट क्वेश्चन है. 21 में क्या लिखा है? डैश इज यूज्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री. ब्रूइंग इंडस्ट्री मींस प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल आपको पता है सबको. बियर, वाइन, वोडका, विस्की, रम, जीन. These are different types of alcohol and they are produced from different substrate. Substrate क्या यूज करते होगे? मे बी शुगर केन जूस, एप्पल जूस, बेबी काजू. यू नो, काजू से बना हुआ जो अल्कोहल है उसको गोवा में फेणी बोलते हैं. तो ये सब जो है ना, वो जो प्रोसेस है उसको माल्टिंग बोलते हैं. एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री मींस प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. तो क्या यूज करते हैं उसमें? यस, GA3, GA3. एंड रिमेंबर, जैसे मैंने बोला था ना, इंडोल एसिटिक एसिड इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग नेचुरल ऑक्सिन. वैसे GA3 इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग जिबरेलिन इन प्लांट्स. GA3 इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन में, जिबरेलिन में GA3. क्योंकि जिबरेलिन में नाम नहीं दिए, GA1, GA2, GA3 ऐसे नाम है. तो GA3 इज मोस्ट कॉमनली अकरिंग जिबरेलिन. नाउ नेक्स्ट वन. Now you know that gibberellin when we sprayed on the plant, क्या होता है? लंबे होते हैं ना प्लांट्स, हाइट बढ़ती है. यानी कि इंटरनोड जो है, इंटरनोड मींस डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, एडजेसेंट नोड्स. इंटरनोड इंक्रीज होते हैं, ये याद रखो. तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? In order to increase the yield of sugarcane crop, which of the following plant regulator should be sprayed? gibberellin, शुगरकेन में क्या यूज करते हैं? स्टेम. तो स्टेम अपने को लंबा होना चाहिए, तो जिबरेलिन यूज करना है. Now 23, genetic dwarfs can be converted to tall plants by application of. gibberellin, जिबरेलिन. जेनेटिकली ड्वार्फ मींस छोटे प्लांट है, उसको हमको लंबे करना है, तो जिबरेलिन यूज करना है. Elongation of internode is caused by. Yes, elongation of internode is caused by gibberellin, जिबरेलिन. और नेक्स्ट है ना, which of the following hormone can be used to promote bolting in beet and cabbage? तो बोल्टिंग क्या है आपको पता है? नहीं पता होगा तो मैं बोलती हूँ. बोल्टिंग पता है या नहीं है पता? बोल्टिंग 25 में लिखा है ना, बोल्टिंग इन बीट एंड कैबेज. वो बोल्टिंग क्या है आपको पता है क्या? बोलती हूँ मैं, शायद पता नहीं होगा. देखो, बोल्टिंग में बोर्ड दिखाई देता है ना, बोर्ड दिखाई देता है. yes, देखो बोल्टिंग है ना, देखो अभी प्लांट्स देखे ना, कैबेज नहीं तो बीट,
मोनोकॉट प्लांट्स तो कैसे रहते हैं ये सॉइल सरफेस है तो ऐसे ऐसे रहते हैं ना लीव्स आर लाइक दिस हाँ बट बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ flower or inflorescence one of the internode becomes long like this और यहाँ पे फ्लावर्स फॉर्म होते हैं दिखाई दिया ये इंटरनोड लंबा होता है और यहाँ पे फ्लावर्स नहीं तो इन्फ्लोरेसेंस तैयार होता है so when one of the internode grows long and then flower formation take place that is called as bolting and bolting also takes place because of gibberellin तो इसका आंसर है gibberellin 25 का आंसर है gibberellin अभी 26 से 30 आप करो 26 to 30 और 30 ने और ज्यादा किया तो भी चलेगा मैं आती हूँ 2 मिनट पे हो गए तो बोलो हाँ हो गए या नहीं Yes. 26 what change can be observed in the grape stalks upon application of GA3 The length of the grape stop correct increases. correct length of the stalk will increase क्योंकि जिबरेलिन से वही होता है next question which of the following is not inhibitory substance governing seed dormancy Gibberellic acid. correct because gibberellic acid will increase the speed of germination of seeds so it will speed up that means it will not inhibit then cytokinins are अभी precursor किसके है cytokinin adenine के है
ऑक्सिन जो है ना वो ट्रिप्सिन है. For auxin the precursor is trypsin. For gibberellin it is acetyl coenzyme A. For cytokinin it is adenine. मुझे लगता है ये बुक में नहीं दिया है तो नहीं बोलना चाहिए मुझे. ठीक है. cytokinins are adenine derivatives. 29 का क्या है? ये बुक में दिया है. Identify the natural phytohormone isolated from corn kernels and coconut milk. दिया है आपने बुक में. Zeatin. Zeatin, correct. Zeatin. ये बुक में दिया है ना. And coconut milk was used in the beginning for tissue culture. ये भी दिया है बुक में. अभी identify the natural phytohormone. ये हो गया ना. Auxin induced apical dominance is counteracted by. See, auxin से apical dominance होता है. Apical dominance आपको पता है. When apical bud is there, lateral branches do not grow. उसको counteract करने वाला इफेक्ट उसको बोलते हैं एंटी अपाइकल डोमिनेंस. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करना पड़ेगा? दिया है बुक में. क्या है? मुझे लगता है आपको बहुत बार बुक पढ़ना चाहिए क्योंकि ये 12th के सिलेबस में. फॉरगेट अबाउट नीट और सीईटी. ये बोर्ड में है ना, तो बोर्ड में तो लिखना है ना. समझो एक नोट पूछा 2 मार्क के लिए. राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशंस ऑफ मे बी ऑक्सिन, जिबरेलिन, कुछ भी हो, कुछ भी पूछेंगे तो आपको वो आना चाहिए ना लिखने को. ये चैप्टर हुआ है ना आपका सबका सिखा के. Yes. तो टेस्ट भी होगी ना, या नहीं? टेस्ट नहीं हुई है नहीं हुई मैम टेस्ट थियोरी की. तो भी टेस्ट नहीं हुई तो भी आपको पढ़ना तो चाहिए ना. समझो टेस्ट नहीं हुई तो भी टेस्ट नहीं हुई इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए. तो सिर्फ अक्षय बात कर रहे हैं, बाकी कहाँ गए? या बाकी लोग आते हैं ज्वाइन करके सो जाते हैं कि प्रेजेंट ही तो लग गई मेरी. ऐसे है क्या? सुबह सुबह 7 बजे लेक्चर बायोलॉजी का, वो भी. वैसे तो सब सब्जेक्ट बोरिंग ही है बच्चों के लिए. चलो ठीक है, आगे का बोलो मुझे क्वेश्चन. कौन सा चल रहा है हमारा? एंटी अपाइकल डोमिनेंस वाला. ऑक्सिन इंड्यूस्ड अपाइकल डोमिनेंस इज काउंटरएक्टेड बाय. क्या यूज करना चाहिए? समझो मुझे वो ऊपर का बड़ नहीं कट करना है तो मुझे क्या देना चाहिए? प्लांट्स के ऊपर क्या स्प्रेड करना चाहिए तो वो एंटी अपाइकल डोमिनेंस निकल जाएगा? साइटोकाइनिन. हाँ हाँ बराबर, साइटोकिनिन्स. करेक्ट 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 करेक्ट. अभी 31 से 35 करो. अपने नोट्स में है देखो ऊपर, नहीं तो बुक देखो. मेरे हो गया 5 क्वेश्चन सॉल्व करके. अब करो. और हो गए तो बोल देना. डन मैम. Done. Okay, 31. The plant growth hormone that promotes mobilization of nutrients in plant is Cytokinin. correct. Cytokinins.
32, which of these functions is not correct for cytokinin? Not correct. Promoting bolting. Promoting bolting. Bolting तो जिबरेलिन से होता है. 33, which one of the following is a gaseous hormone? Easy है. Ethylene. Correct. 34, which of the following has abundance of ethylene? Ripening fruits. Yes, very good. Ripening fruits, because ethylene promotes the this ripening of fruits. Which one of the following is fruit ripening hormone? Ethylene. Correct. अभी 36 से करो. (36 to 40). चलो, the term respiratory climactic is associated with respiratory climactics. Have you studied this or do you know this? See, when the this fruit ripening is taking place, at that time the rate of respiration increases. That is respiratory climactics. तो इसका आंसर होगा fruit ripening. 37, ethylene helps the plant to increase their surface areas for absorption by rate of absorption increase होना है तो क्या होना चाहिए? Promoting root hair formation. Correct. 38, a dash is used for synchronizing fruit set in pineapple. पाइनएप्पल में फ्रूट तो कैसे तैयार होता है? पार्थिनोकार्पी से होता है. आपको पता है पाइनएप्पल में, तो उसके लिए भी फ्रूट तैयार होने के लिए इथिलीन की जरूरत है. So answer will be ethylene. 38 का. Then 39, blackening of potato or banana is due to exposure to air is due to. देखो, हम लोगों ने पोटैटोज नहीं तो बनाना कट करके रखा तो काला पड़ता है ना? क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक्स. क्लियर? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक्स अपने इसमें दिया है क्या नोट्स में? देखो, रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक्स Yes. दिया है ना? दिया है? मैंने देखा नहीं है क्योंकि अपने बुक में तो नहीं है. इसमें ma'am. दिया है ना? हाँ. Which of the following is not true about ethylene? अभी इसके लिए तो एप्लीकेशन सब बाय हार्ट होना चाहिए तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. क्या होगा इसका आंसर? देखो, आज अपने को ये चैप्टर खत्म करना है. अभी और आधा घंटा बाकी है और क्वेश्चंस तो कम है बस बाकी अभी. हाँ, इसका आंसर क्या है? It promotes male flowers. करेक्ट, दैट इज योर आंसर. अभी देखो 41 से लेके कितने क्वेश्चंस है इसमें? अभी 41 से लेके 53 तक. नहीं, 53 नहीं और है ना, 55 तक है. चलो फटाफट करो.
15 क्वेश्चन है, बाकी फोटो पीरियडिज्म में कितने हैं? 3 3 4 तो 15 अच्छा 19 19 वर्नलाइजेशन में कितने हैं? 4 23 और बाद में कितने हैं? 5 23 एंड 5 28 पूरे तो नहीं हो जाएंगे, जितने होते हैं उतने करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर ना, अभी टाइम है, मैं छोड़ नहीं रही हूँ, ये चैप्टर खत्म करके अपने को आगे का चैप्टर करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। तो चलो अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा? 41। चलो 41 से 45 50 तक करो, चलो 41 से 50 10 मिनट। 41 से 50 आप नोट्स देख सकते हो, बुक देख सकते हो, लेकिन पीछे का आंसर नहीं देखना है।
चलो हो गए क्वेश्चंस। बहुत ब्रेक दिया मैंने, ब्रेक के ने पढ़ने को टाइम दिया। चलो अभी 41। आर यू रेडी? Yes. Identify the hormone which question number 41. Identify the hormone which accelerates abscission in flower and fruits of cotton, cherry and walnut. Ethefone. हाँ यही चालू है ना, क्वेश्चन 41 ही चालू है ना। Yes. हाँ तो क्या है आंसर इसका? आंसर 41 का Ethefone. ये इथेफॉन दिया है, ये बुक में दिया है। Then 42, ethylene is a simple gaseous plant growth regulator. Identify in which of the following the ethylene is synthesized in large amounts by tissues. B option. कौन सा? B. Second one या first one? Ripening of the fruit तो जरूर है, और कहाँ पे होगा? Senescence होगा. सेनेसेंस होगा। सेनेसेंस जहाँ होता है ना तब इथिलीन तैयार होता है, यानी आंसर विल बी फर्स्ट वन। ए विल बी आंसर फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट वन, डॉर्मिन इज ऑल्सो नोन एज, डॉर्मिन अपने बुक में दिया है। हाँ डॉर्मिन किसको डॉर्मिन बोलते हैं? दिया है, कॉटन बॉल से जो निकाला गया था वो डॉर्मिन था। क्या है वो? एब्सिसिक एसिड का Abscisic दूसरा acid. नाम है, एब्सिसिक एसिड का डॉर्मिन। काइनेटिन साइटोकिनिन का है, डॉर्मिन एब्सिसिक एसिड का है, याद रखो। दिया है ना बुक में, अपने बुक में भी दिया है ये शायद। 43 का आंसर है एब्सिसिक एसिड। 44 का क्या होगा? डैश इज एन एंटीगोनिस्टिक टू जिबरेलिक एसिड, यानी जिबरेलिक एसिड Abscisic का जो इफेक्ट है ना उसका अपोजिट इफेक्ट किससे मिलता है? Abscisic acid. करेक्ट। For example, gibberellin will help the stomata to open. So abscisic acid will close the stomata. See, abscisic acid is called as stress hormone. Stress hormone. हम लोगों को स्ट्रेस आ गया तो हम लोग दवा लेते हैं, है कि नहीं? यानी if you are having some stress, to overcome it, actually we can do it by thinking properly. लेकिन sometimes we cannot do like that. Then you go to psychiatrist. You means people go to psychiatrist. तो psychiatrist कुछ दवा देता है स्ट्रेस रिमूव करने के लिए। तो वो स्ट्रेस के लिए औषध है, दवा है। लेकिन प्लांट को स्ट्रेस होगा, प्लांट को कब स्ट्रेस होगा? प्लांट को जब पानी नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो स्ट्रेस होगा। तो एट दैट टाइम एब्सिसिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट and it can help the plant to overcome unfavorable conditions. So how it will help? It will inhibit the plant growth. It will help the plant to fall the leaves. Leaf गिर जाएंगे, fruits will fall down, flowers will not be formed, stomata will close, so transpiration will not take place, seed will not germinate. So like that, the plants can overcome the unfavorable conditions. And that is why this abscisic acid is called as growth inhibitor. Okay, growth will stop or it will reduce. Now 44 हो गया ना, 44 dash is antagonist हो गया। 45, which one of the following is growth retardant? Retardant means reduce, कम करेगा, inhibit. ABA, abscisic acid. Under 46, under adverse environmental condition, plants produce a stress hormone. This stress hormone is ABA, correct. ऐसे ध्यान में रखते रहने का। 2,4-D क्या है? मैंने बोला है 2,4-D क्या है? ये 2,4-D ऑक्सीजन, and it is a BD side. GA3 क्या है? Gibberellic acid. Gibberellic acid. Most commonly occurring gibberellic acid. Gibberellin. Indole butyric acid is natural oxide. Natural oxide. And indole acetic acid IAA is most commonly occurring natural oxide. ऐसे बार बार याद करते जाने का तो हो जाएगा।
47, which one of the following hormone does not occur naturally in plants? Kinetin. Kinetin. Kinetin क्या है? Cytokinin. हाँ. Then next one, 48. A farmer wants to increase the length of grape stalk. Which of the following hormone should he use? See, वही question फिर से आ गया. क्या है वो? Gibberellic acid. Correct. Then 49. Which of the following growth hormone controls xylem differentiation and helps in cell division? 49. ये ऑक्सिन है. It will control xylem differentiation and helps in cell division. Auxin. 50 क्या है? The phenomena called apical dominance in plants is due to. अभी ये तो आना चाहिए. Auxin. करेक्ट. चलो 51 करेंगे. 51 से लेके 55 5 क्वेश्चन 5 मिनट. चलो करो 5 मिनट पे 5 क्वेश्चंस करो. अभी मैं ट्रिक बोलूं 51 के जैसे. देखो अभी ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन ये सब कुछ दिया, लेकिन अभी मुझे सब समझो कि नहीं आता है. तो मुझे सबसे पहले क्या आएगा? इथिलीन तो मुझे पता है कि राइपनिंग के लिए है. साइटोकिनिन सेल डिवीजन के लिए है. जिबरेलिन किसके लिए है? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. नहीं तो ऐसे प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, ऐसे कुछ तो याद होगा. तो वो देख के आंसर ढूंढ लेने का. तो अभी कैसे करेंगे आंसर? ऑक्सिन का क्या हो सकता है? जिबरेलिन का क्या हो सकता है? साइटोकिनिन का क्या होगा? Promotes nutrient mobilization. साइटोकिनिन का, हाँ, Yes. साइटोकिनिन का अभी प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. ई है. तो अभी ई आंसर थर्ड में किस में है? सी और डी में. सी और डी में. तो अपना ए और बी आंसर नहीं है, ये पता चला. तो सी और डी में से ही अभी निकालना है. ठीक है. तो अभी देखो, तो अभी कैसे करेंगे? देखो और कुछ आता है क्या? Ethylene causes Ethylene का भी. climatic. कॉजेस क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन. तो चौथे का बी किस में है? C option. सी में है. तो अपना आंसर क्या होगा? सी होगा. ऐसे जो आता है ना वो देख के किस पे है वो लिखा है वो देखने का और वो आंसर देने का, क्योंकि सब कुछ नहीं आता है, ऐसे हो सकता है इसलिए. अभी 52 देखो, ऐसे स्टाइल का है. सिंथेटिक ऑक्सिन, एपीए, जिबरेलिन, इथिलीन ये दिया है. अभी इधर क्या क्या है वो पढ़ो. अभी 3 के सामने सी होगा. जिबरेलिन will increase the length of sugarcane stem, ये पक्का है. हाँ. तो अभी 3 का सी किस में दिया है? देखो 3 का सी 2 में दिया है, ए और
सी में। तो बी और डी अपना आंसर नहीं, ये पक्का हो गया बराबर। तो अपना आंसर क्या हो सकता है? आंसर आइदर सी। अभी क्या मैंने क्या बोला अभी? जिबरेलिन ना, नहीं सॉरी, जिबरेलिन थर्ड में है। थर्ड का आंसर 3 है, सी है। थर्ड का आंसर सी किस में दिया है? D option. अरे थर्ड का आंसर डी में ही दिया है, Yes. तो डी ही होगा अपना आंसर, है कि नहीं? लेकिन बाकी देखो फिर लकी करेक्ट होते हैं कि नहीं, है क्या करेक्ट बाकी के? Yes. हाँ, तो वो आंसर ऐसे देखते जाने का तो हो गया। अभी 53, you are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormone would you add to the medium to secure shoots as well as root? अरे ये अपने को पता है, मॉर्फोजेनेसिस। रूट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए और स्टेम फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? रूट के लिए ऑक्सिन चाहिए, है कि नहीं? और स्टेम के लिए साइटोकिनिन चाहिए। तो 53 का आंसर क्या होगा? C, auxin and cytokinins. In tissue culture medium, we add auxins and cytokinins. Auxins will be responsible for formation of root. Cytokinins will be responsible for formation of shoot. ये टिश्यू कल्चर में भी हम लोगों ने किया है। तो 53 का आंसर होगा ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। ओके, अभी 54 देखो। It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormone can be applied artificially to induce flowering? Two बाद में आने आएगा, artificially to induce flowering in pineapple plant throughout the year to increase the yield. क्या डालना चाहिए अपने को इसमें? ऑक्सिन एंड इथिलीन। करेक्ट, ऑक्सिन एंड इथिलीन। अभी 55 देखो। अभी 55 वैसे ही है, अभी फ्रूट राइपनर इथेपॉन है बराबर, बोल्टिंग का है जीए, स्ट्रेस हार्मोन है एब्सिडिक एसिड, और हर्बिसाइड 2,4-D। तो देखो क्या किस में आ गया? फ्रूट राइपनिंग 1 का डी, 1 का डी किस में है? बी और सी में है। तो अपना आंसर बी और सी में से ही होगा। हर्बिसाइड कौन है? 2,4-D। तो 2 का आंसर सी किस में दिया है? बी में दिया है। तो आवर आंसर इज बी। पता चला कैसे करना है फटाफट? यस। क्योंकि ना 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अभी फोटो पीरियडिज्म, चलो फोटो पीरियडिज्म याद है ना? Effect of duration of light to which the plant is exposed in order for flowering, it is called as photoperiodism. आपको याद है ना? And Garner and Allard did the work on tobacco plant, that is Nicotiana tabacum, even on soybean, and they discovered this photoperiodism. And then what they said, critical photoperiod का मतलब क्या है? Critical means minimum photoperiod to which the plant should be exposed in order to flowering. It is called as critical photoperiod. और short day plant में critical photoperiod को plant expose होना चाहिए तो उससे कम, और long day plant में the plant should get critical photoperiod or more than that light, duration of light, that is critical photoperiod. And then what they did, they classified the plants in 3 categories: short day plant, long day plant, and then neutral plant. Short day plant का मतलब क्या है? The plant should be exposed to to light, sunlight, at least for critical photoperiod or less than that. Then only flowering will take place. Long day के plant में क्या है? The plant should be exposed to sunlight for critical photoperiod or more than that. That is long day plant. And day neutral plant में that duration of the light may be anything, the plant is going to flower only, that is day neutral plant. इसकी एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नो क्वेश्चन 1 आप करो, 4 ही क्वेश्चन है शायद, 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट ले लो और करो। हो गए कि बोल देना।
हो गए तो बोल देना। देखो 1 वाला तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, अबाउ क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिलेगा तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर हो गए, लेकिन ज्यादा मिलेगा तो नहीं फ्लावरिंग होगा। और लॉन्ग डे प्लांट में क्या है, लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल फोटो पीरियड के ऊपर भी लाइट मिल गया, सनलाइट, तो भी फ्लावरिंग होने वाला है। तो उसके लिए आंसर क्या होगा अबाउ क्रिटिक, क्वेश्चन 1 के लिए? C option. Yes, short day plants will not show flowering, but long day plants will show flowering. Correct. Now, question 2, which one of these factors is the most important in determining whether a plant is short day or long day? Critical photo period. Yes, correct. Third one, रुको मेरा क्या हो गया? Which one of the following is correct for blooming of short day plant? Blooming means flowering. Yes, you know that in short day plants actually they are long night plants. Unme dark period is more important, and if the long nights are broken or interrupted by even a flash of light, the plant will not flower. यानी कि short day plant में long nights without any exposure to sunlight is important. तो इसके क्या आंसर होगा? यस, क्योंकि डार्क पीरियड के बारे में लिखा है ना, इसलिए मैंने बोल दिया ये आंसर। क्या होगा इसमें? ये हम लोगों ने गिव साइंटिफिक रीजन में किया है, शॉर्ट डे प्लांट्स आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर लॉन्ग नाइट्स, देयर शुड नॉट बी एनी इंटरप्शन बाय इवन अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? B option. सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन 3 का आंसर होगा बी, सेकंड। इट इज अफेक्टेड बाय इंटरप्शन ऑफ लॉन्ग डार्क पीरियड बाय ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। करेक्ट। Then spinach requires exposure to light for more than critical period in order to flower. Thus it is called Long day plant. yes, correct, long day plants. अभी क्या वर्नलाइजेशन और ये अभी करेंगे या नेक्स्ट टाइम करेंगे? 9 क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 9, तो 9 तो होने वाले नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 8:30, तो हम वर्नलाइजेशन उसके आगे सीड डोरमेंसी जो है ना वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, और उसके साथ और कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप पढ़ते जाना। मुझे बहुत ऐसे डिसअपॉइंटमेंट लगती है कि आप कुछ आंसर ही नहीं देते हो, सिर्फ एक बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी कोई नहीं। क्यों? ये सब सोए रहते हैं क्या? अभी सुबह सुबह है 7 बजे, इसलिए देखो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। नीट के लिए छोड़ दो, सीईटी के लिए छोड़ दो, लेकिन 12th को तो करना ही है ना, प्लांट ग्रोथ चैप्टर करना ही चाहिए। तो आप और थोड़ा पढ़ाई करो। मुझे मालूम है कि आप लोगों को पढ़ने को इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कॉलेज रहता है अभी आजकल, उसके साथ क्लासेस भी है, टेस्ट रहती है, लेकिन क्या करें, उसमें ही टाइम निकालना है आपको, है कि नहीं? क्योंकि एक बार 12th एग्जाम हो गई है और आप पास हो गए तो बाद में फिर से